नाउ स्टार्टेड। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं आया हूँ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, जो कि आपको गेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, और वो है साइनसॉइडल इनपुट टू एन एलटीआई सिस्टम। तो साइनसॉइडल इनपुट जो है वो किसी भी डोमेन में आप देखिए, चाहे कंट्रोल सिस्टम देख लीजिए, चाहे आप सिग्नल सिस्टम देख लीजिए, या नेटवर्क में भी आपने देखा होगा कि कोई भी एक साइनसॉइडल इनपुट किस तरीके से सिस्टम के अंदर बिहेव करता है, और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको गेट में जरूर से मिलते हैं। इसे क्लियर? चलिए हम लोग ये जानते हैं। इससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सर, माई नेम इज पंकज सिंह। आई हैव क्लियर गेट 4 times, in which 2 times my rank is under 100. I have 11 plus year of teaching experience, and I have mentored around 1 lakh plus students throughout a 350 plus batches. Okay, and I was student with the ACE Academy for the last 6 years. Total teaching experience is 11 years, and the subject I take is a signal system, control system, and ADC. Got it? So if you want to support me in an academy, then you may use the Pankaj 11 code. Pankaj 11 code will give you the wings to access all paid or free content in Unacademy. Okay, so it's better to join Unacademy because Unacademy has a lot of benefits. Let me tell you what are the benefits first. Is it clear? So in Unacademy you will get a plus classes. Okay, live classes. That is these are the live classes. Okay, let me highlight this one. So you may get the live classes, and along with that you have a doubt solving batches separately. From one subscription only you will get a access on RIB and crash batches. Okay, so you do not have to pay extra to get access into this one. Okay, in just one minimal subscription you will get this one. Along with that, so you have a weekly tests, and the batches are conducted in English and Hindi. So there is a different batch for English, and there is a different batch for Hindi. So plus has a lot of benefits, guys. If you want to join, then you may join the plus using this code, Pankaj 11 code. Okay, so from the Pankaj 11 code you will get all my experience, because I have cleared gate also many times. So I will guide you that what are the pitfalls, what are the you may say that what kind of strategy required to crack this examination. Okay, now if you want to personalize your preparation, guys, then you must go for Iconic. In Iconic subscriptions you have a personal coach. Along with that you have a study planner. Okay, and study booster sessions, and mainly personalized test analysis. Okay, so a faculty will provide you the booster sessions, personalized test analysis, and that to prepare the study material. Okay, so you may join Unacademy in two mode. One is a free mode and one is a paid mode. In a paid mode also the fees is very less, and आप बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो छोटे से फीस में आप अपने प्रिपरेशन को जो है पर्सनलाइज कर सकते हैं। गॉट इट? और जहाँ तक फ्री क्लास की बात है, तो मेरे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं वो आप देख सकते हो। अभी जैसे कि PYQ चल रहा है, डेली मंडे टू फ्राइडे चलता है आपका 2 hours 8:30 to 10:30 के बीच में। तो 8:30 to 10:30 के बीच में यू हैव अ फ्री क्लासेस PYQ, प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस। अभी गेट में सिग्नल्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, गेट सिग्नल्स एंड सिस्टम यू मे जॉइन दिस वन आल्सो। ओके, तो ये कंप्लीटली फ्री है। तो 2 वे में आप अनअकैडमी पे आ सकते हो, एक तो फ्री प्लेटफॉर्म पे और एक पेड प्लेटफॉर्म पे। तो फ्री में बिल्कुल आप आके देख सकते हो, जितना भी आप एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसे क्लियर? तो ये सारे बैचेस हैं जो कि अभी आने वाले हैं। ये मैंने एक स्लाइड रखी है जो कि कंपेयर करती है अनअकैडमी प्लस और यूट्यूब लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस को। गॉट इट? तो आपको यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियोस और अनअकैडमी प्लस में ये स्लाइड जो है वो आप लोगों को डिफरेंशिएट करती है। तो देखो, रिकॉर्डेड वीडियो में केवल लेक्चर्स मिलेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब में आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड कॉम्प्रिहेंसिव लाइव दोनों में मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, पर अगेन अच्छे क्वेश्चंस का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, अनअकैडमी प्लस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिल सकती हैं। तो अगर आपको रिकॉर्डेड ही देखना है तो आपको कोई PDGD खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको आप फॉलो कर लीजिए, एंड दैट इज अ मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे मैंने सिग्नल सिस्टम का भी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसे क्लियर? और ये बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी में चालू हो गए हैं। आप किसी भी बैच में पंकज 11 कोड के थ्रू बिल्कुल जा सकते हो। गॉट इट? अभी ये रिसेंट बैच स्टार्ट हुए हैं 1 मार्च को, और ये अभी 8 मार्च को भी स्टार्ट हो रहा है। आज जो है वो कॉम्बैक्ट है,
करीब 11 बजे। इज इट क्लियर? कॉम्बैट था, हो गया। और यहाँ पे आप लोग जो है वो दे सकते हो। इज इट क्लियर? फीस की अगर बात करूँ तो फीस जो है वो 27,225 रुपये फीस है 1 साल की, और 1.5 साल की जो फीस है वो है 34,650 रुपये, और 2 साल की जो फीस है वो 39,600 की अप्रॉक्स आपको फीस मिलेगी। तो इतना सारा चीज़ आपको नॉमिनल कॉस्ट में मिल रहा है गाइस, बिल्कुल आप बिल्कुल ले सकते हो। आइकॉनिक की ये फीस है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइनसॉइडल इनपुट टू एन एलटीआई सिस्टम। इज इट क्लियर? साइनसॉइडल इनपुट टू एलटीआई सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। तो मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। लेट मी चेंज द कलर। मान लो आपके पास ये इस तरह से एक सिस्टम है। तो देखो एलटीआई सिस्टम के साथ एक बहुत अच्छी खूबी आपके पास होती है, मैं इसे एग्जाम्पल से भी सपोर्ट करूंगा, कि अगर आपने कहा कि यहां पर ए साइन या कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा अगर किसी एलटीआई सिस्टम पे एंटर करे, किसी एलटीआई सिस्टम पर ए साइन या कोसाइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा अगर एंटर करे, तो आउटपुट भी इसका होता है एम साइन या कोसाइन ओमेगा नॉट टी और प्लस फी। जहां पे देखो एम क्या है सर, अगर ये एक एलटीआई सिस्टम है, अगर ये एक एलटीआई सिस्टम है तो डेफिनेटली यहां पर इसका इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन होगा आपको एच टी, और जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको पता होगा एच जे ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन जो पता होगा वो होगा एच जे ओमेगा। तो यम क्या है, देखिए व्हाट इज यम? एम इज ए इंटू इनकमिंग मैग्नीट्यूड इंटू सिस्टम मैग्नीट्यूड मॉड एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाता है, और फेज जो है फी वो नथिंग बट माई इट इज थीटा इनकमिंग फेज प्लस एंगल एच जे ओमेगा at omega is equal to omega naught, at omega is equal to omega naught. So what I am saying is that sir, the phase is nothing but my a theta plus angle hj omega at omega is equal to omega naught. That is one of the most important thing. That is one of the most important thing जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है। Got it? तो इससे एसोसिएटेड देखिए प्रॉब्लम्स मैं अब करता हूं। जैसे कि मान लो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है कि जैसे कि मान लो एक सिंपल आरसी सर्किट है, एग्जाम्पल ठीक है सर, मान लो मेरे पास एक सिंपल आरसी सर्किट है और आर की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और सी की वैल्यू ले लेता हूं 1 फैरेड, और मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है मान लो, और इस पर एक इनपुट जो है वो एंटर कर रहा है। इनपुट में ले रहा हूं एक्स टी जो कि है 2 cos ऑफ टी और प्लस लेट्स से 3π/4, और किसी ने बोला कि यहां पे इसका आउटपुट आप निकालिए बाई टी। किसी ने आपसे कहा कि यहां पे इसका आप आउटपुट जो है फाइंड आउट करो, तो आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आप सिस्टम देखो जरा। सर आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था ये सिस्टम जो है वो एचएस है, एचएस जो कि होता है 1/RC, इसका ट्रांसफर फंक्शन S प्लस 1/RC, 1/RC। सर ये एक सिंपल लो पास फिल्टर है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है HS इज इक्वल टू 1/RC अपॉन S प्लस 1/RC, और RC की वैल्यू 1 है तो ये HS आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/S प्लस 1, ये हो जाएगा 1/S प्लस 1। तो आप इसे सबसे पहले आप एच जे ओमेगा में कन्वर्ट कर लो, एच जे ओमेगा में कन्वर्ट करो आप, तो ये कितना हो जाएगा 1/J ओमेगा
प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे इसका दो पार्ट है, एक तो मॉड एच जे ओमेगा है, मॉड एच जे ओमेगा है जो कि है 1/√ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। एंगल एच जे ओमेगा भी है जो कि है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो अब आपका सिस्टम यह है कि देखो, एक सिस्टम है आपके पास कुछ ऐसा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक HS है जो कि 1/s+1 है, तो इसका एच जे ओमेगा जो होगा वो होगा 1/j ओमेगा प्लस 1, और मॉड एच जे ओमेगा कितना होगा, इट इज द 1/√ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और एंगल एच जे ओमेगा जो होगा वो होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जो है इस जगह पे देखो ध्यान से, इनपुट जो आ रहा है xt, इट इज इक्वल टू हाउ मच, लेट्स से व्हाट इज द इनपुट, 2 cos t प्लस 3π/4, 2 cos t प्लस 3π/4। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट भी आना चाहिए m cos ऑफ t प्लस फी। एक बात आप समझना सर, एलटीआई सिस्टम के लिए जो फ्रीक्वेंसी यहां पे आ रही है, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पे भी फ्रीक्वेंसी आपकी 1 रेडियन पर सेकेंड ही होगी, ये कभी चेंज नहीं होती। और आपको पता है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से चेंज नहीं होती, ये हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे भी, दिस इज नोन एज आइगन फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो आइगन फंक्शन कॉन्सेप्ट से ये कभी चेंज नहीं होता। तो यम cos t प्लस फी, तो यम की वैल्यू निकालते चलो, व्हाट इज यम, m इज 1 इंटू इनकमिंग मैग्नीट्यूड, सॉरी इनकमिंग मैग्नीट्यूड है 2, तो इसको 2 लिख देते हैं, इसको चेंज करें, ठीक है, यम की वैल्यू फिर से लिख देते हैं, व्हाट इज यम, यम इज 2 इंटू 1/मैग्नीट्यूड, देखो ये मैग्नीट्यूड ये है 1/√ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एट ओमेगा इज इक्वल टू कितना, जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/√2, ओमेगा की जगह 1 पुट करो तो ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा √2। चलो फेस निकाल लेते हैं, फी देखो इनकमिंग फेस है 3π/4, इसमें आप सिस्टम का फेज ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करोगे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये π/4 हो जाएगा, तो 3π/4 माइनस π/4 मतलब कि π/2। तो इसका जो आउटपुट आया है, आउटपुट आया है ये है yt। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि टोटल जो आउटपुट होगा yt इज इक्वल टू कितना, √2 cos ऑफ t प्लस π/2, दैट इज आउट। दैट इज आउटपुट। सो टोटल जो होगा वो होगा √2 cos t प्लस π/2, ये इसके आउटपुट होंगे। इज इट क्लियर, बहुत इजी है, बस आपको सिस्टम का मैग्नीट्यूड देखना है, सिस्टम का फेज देखना है उस फ्रीक्वेंसी पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है जो कि ऐसा है, ठीक है, ये सिस्टम है,
और इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, ये है वैल्यू π/2 और ये है वैल्यू -π/2। ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 4। मान लो ये मेरा सिस्टम है। और इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। ये मैंने बॉक्स कर दिया। ये है मॉड एच जे, ये ओमेगा पे है। ये है मॉड एच जे ओमेगा और ये है एंगल एच जे ओमेगा। ये है मान लो 0, ये है मान लो 20 और ये है मान लो 30 और ये है 0 और ये है मान लो 20, ये है -20 और ये है 30। ये भी ओमेगा में। मान लो किसी ने कहा कि इनपुट जो है वो है 2 cos 10t और प्लस π/4। एक तो ये और दूसरा ये 3 sin 40t। मान लो किसी ने कहा कि इसका आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, तो बस आप देख लो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। देखो यहां पे 10 है, तो चलो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। ये 10 पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, देखो 10 पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4। 10 पे मैग्नीट्यूड कितना है, ये 10 है ना। और 10 पे फेस कैसे निकालोगे सर, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ यम ओमेगा होगा। माइनस ऑफ यम ओमेगा होगा इसकी -20 से लेके 20 तक, जब ओमेगा की वैल्यू -20 से लेके 20 के बीच में है। -20 से लेके 20 के बीच में है, तो बस यम की वैल्यू निकालो। यम क्या है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। एम कितना होगा इसका, व्हाट इज यम सर, चेंज इन वाई इज पाई, चेंज इन एक्स इज 40, तो ये हो गया π/40। और चूंकि ये निगेटिव जा रहा है इसलिए नेगेटिव π/40। तो कहने का मतलब कि थीटा की वैल्यू, मैं ये सब हटा रहा हूं, आई डोंट हैव टू मच स्पेस। ओके, सो थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा की वैल्यू होगी वो होगी -π/40 इंटू यम ओमेगा इंटू ओमेगा, बिटवीन कहां से कहां तक, -20 से लेके 20 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ओमेगा ग्रेटर देन 20 के लिए जो फेस होगा वो फिक्स्ड फेस है -π/2। तो बस एक बार आपने ये निकाल लिया, आपका कहानी, आपका जो है वो हर्डल खत्म हो गया। हर्डल जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान देखिए प्लीज। अब ये cos 10t है, तो सीधे आप यहां पे cos 10t लिखो, cos 10t होगा। बस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, फेज ऐड कर दो। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 मैग्नीट्यूड है इनकमिंग और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर 20 हो जाएगा। और फेस कितना होगा सर, पहले से फेस कितना है, π/4। बस सिस्टम का फेस कहां पर निकालना है, 10 पे, तो ओमेगा की वैल्यू 10 पुट करो तो यहां पे π/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा -π/4, -π/4। ओके, तो ये π/4 था और -π/4 ये होगा। गॉट इट। सिमिलरली तो इसको आप चाहो तो लिख दो, ये हो जाएगा 20 cos 10t। दिस इज नथिंग बट माई
नेट आउटपुट बिकॉज ऑफ दैट। अब साइन 40t के लिए क्या होगा, साइन 40t है, अगर साइन 40t है तो 40 पे मैग्नीट्यूड देख लो बस आप, 40t यही होगा, 40 पे मैग्नीट्यूड है 2, पहले से 3, तो 2 into 3 हो जाएगा ये। और 40 पे फेज देख लो सर, 40 पे फेज 20 से बड़ा है, मतलब -5 गॉट इट। ये इसका आउटपुट होगा। तो दो आउटपुट आए आपके पास, दो आउटपुट आए, एक तो ये एक तो ये। तो अगर इनपुट आपका ये था, अगर आपका इनपुट ये था xt इज इक्वल टू कितना, 2 cos 10t प्लस π/4, तो और प्लस 3 sin 40t, तो इसका जो आउटपुट आया है, इसका जो आउटपुट आया है वो होगा yt इज इक्वल टू 20 cos 10t प्लस 6 sin 40t माइनस π/2, 6 sin 40t, 6 sin 40t minus π/2. Okay, so this is the input and that is the output. This is the output. So ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जो कि आप बिल्कुल इससे मार्क्स ले सकते हो। आप चाहो तो कुछ भी निकाल लो, आप पावर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो आप इजीली। इट इज लाइक अ फिल्टर प्रॉब्लम। तो ये फिल्टर का प्रॉब्लम है, कन्वोल्यूशन का बहुत अच्छा प्रॉब्लम। सो होप गाइस कि ये आप लोगों को जो है वो समझ में आया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। साइनसॉइडल इनपुट के आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अब इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आप लगा सकते हैं। गॉट इट। और भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप बिल्कुल अनअकैडमी पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको इससे एसोसिएटेड नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। गॉट इट। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड विद दिस थैंक यू।